People are bullying me and making fun of me, and it pains me, and I cry every day. What should I do in this situation? My friend, I really feel for you. मेरे मित्रों, मैं सचमुच में आपके लिए महसूस करता हूँ, Bullying is not easy to face. क्योंकि धौंस का सामना करना आसान नहीं है। The words they speak to insult you, जो शब्द वो आपको बेइज्जत करने के लिए काम में लाते हैं, people ganging up together making fun of you, लोग मिल करके एक झुंड के रूप में आपके खिलाफ कार्य करते हैं, physically hurting you. आपको शारीरिक चोट पहुंचाते हैं। It's very hard to face. इसका सामना करना कठिन है। God sees you परमेश्वर आपको देखता है and He knows your pain. और वो आपके दर्द को जानता है। Let's see about these bullies. आइए हम ऐसे बदमाशों के बारे देखें Who are they? कि वे कौन हैं। They are not just torturing you for name's sake, वे यूं ही आपको तंग नहीं करते हैं because they hate you. क्योंकि वे आपसे घृणा करते No, हैं, my friends, it's because there's something in them which is instigating this. लेकिन मेरे मित्रों, उनके अंदर में कुछ है जो उन्हें ऐसा करने को भड़काती है। Either somebody else is hurting them, या तो कोई और है जो उन्हें दुख दे रहा है, they're going through pain at home, वे घर में पीड़ा से गुजर रहे हैं, or they're facing failures या in their जीवन life, में असफलताओं का सामना कर रहे हैं, or some darkness is within their heart. या उनके हृदय के अंदर में कोई अंधकार है। So they're showing that hatred because of all of these to you. तो इन सब के कारण से वो आपको अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं And they are feeling jealous of your success, और आपकी सफलता से वो जलते हैं, or because of their darkness in their life, they don't want to see you happy. या अपने जीवन के अंधकार के कारण वे आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। Yes, so they're not knowing what they're doing. तो वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। So my friends, look into the heart of the bullies इसलिए मेरे मित्रों, ऐसे बदमाशों के हृदयों को देखें and feel pitiful for them. और उनके लिए आप तरस खाएं। This is why we shouldn't be lashing out at them. इसलिए हमें उन पर वापस चोट नहीं करनी है, It's the darkness within them that is bringing this nature. क्योंकि उनके अंदर का अंधकार उनमें यह चरित्र ला रहा है। So what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? The world will tell you, hey, stand up to your bullies and fight them. संसार कहेगा, अपने सताने वालों के सामने खड़े होकर के उनसे लड़ो Show them that you're not a weak person. और उन्हें दिखाओ कि तुम कमजोर व्यक्ति नहीं हो, Otherwise, they'll keep on bullying you. वरना वे तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। But can you fight a man who is so strong and mighty in his body? लेकिन क्या आप ऐसे लंबे चौड़े डील डॉल शरीर वाले से लड़ सकते हैं? Can you lash out against a powerful person in position? जो व्यक्ति पहले ही पद में आपसे बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्या आप उससे लड़ सकते They will हैं? destroy our career. वे हमारे कैरियर ही खत्म कर देंगे। So we cannot fight our bullies. तो हम अपने सताने वालों से हमेशा लड़ नहीं But सकते, God will help us stand up against them. लेकिन उनके खिलाफ खड़े होने में ईश्वर हमारी सहायता How? करेंगे। कैसे? There are some characteristics which God gives us. हमें परमेश्वर कुछ ऐसे विशेष गुण देते हैं। Firstly, पहले He says, be humble. वो कहते हैं कि दीन बनो। If we go with our ego अगर हम अपने अहम के साथ चलें and with an aggravating spirit और साथ ही एक क्रोधी आत्मा के साथ to go and show aggression against them, जा करके हम उनके खिलाफ में क्रोध दिखाएं, it'll only turn them on even more in anger, तो ये उनके गुस्से को और भी ज्यादा जो है भड़का देगा and they will fight back. और वे वापस हमसे लड़ेंगे। So don't go with your ego to them, इसलिए अपने घमंड के साथ उनके पास न जाएं saying, how can they do this to me? कि ये मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हैं। And at the same time, don't make yourself so inferior. उसके साथ ही साथ अपने आप को बहुत ही ज्यादा निम्न भी मत बनाएं, That is not what humility is. क्योंकि दीनता ये नहीं है। Don't say, I deserve what they do. कभी न कहे जो वो कर रहे हैं मैं उसके लायक ही हूँ। Don't say, yes, what they say is true. I am ugly, I am weak, ये न कहें कि जो वो कह रहे हैं सही है, कि मैं बदसूरत हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, I'm a stammerer, मैं तुतलाता हूँ, I deserve this. मैं इसके योग्य No, हूँ। my friends. नहीं मेरे मित्रों, That is not what humility is. दीनता जो है ये नहीं है। Humility is humbling your heart.
दीनता अपने हृदय को दीन करना है and not reacting bad against the situation. और ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ वापस बुरा नहीं करना है, Being patient लेकिन धीरज धरना है and giving only a soft reply. और एक कोमल उत्तर उन्हें देना है। Proverbs 15:1 says so. नीति वचन 15:1 यही कहता है, A soft answer turns away wrath, कोमल उत्तर जलजलाहट को ठंडी करती है, but a harsh word stirs up anger. परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। Yes, when we reply with a harsh word, it only inflicts more anger. हाँ, हम जितना ज्यादा कटु वचन बोलते हैं उतना ज्यादा वो क्रोध को उत्पन्न करता है, But your soft word can turn off the anger from within them. लेकिन आपका कोमल उत्तर उनके अंदर के क्रोध को शांत। There was a reporter who called a famous philosopher for interview. एक रिपोर्टर था जिसने एक प्रसिद्ध फिलोसोफर को इंटरव्यू के लिए बुलाया, But he hated the fame of the philosopher लेकिन वो फिलोसोफर की प्रसिद्धि से बहुत घृणा करता था and he wanted to finish him off in the interview. और वो उस इंटरव्यू में उसे खत्म कर डालना चाहता था। So when the interview started, he was asking all sorts of angry questions, तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो हर प्रकार के क्रोध लाने वाले प्रश्न वो कर रहा था, negative questions, नकारात्मक प्रश्न, trying to corner him. ताकि उसको वो घेर ले। This statement you're saying, how can you say that? जो भी आप कह रहे हैं उसे आप कैसे कह सकते हैं? Or people are thinking this manner, but your philosophy is in a different way. लोग जो है इस तरह से सोचते हैं, लेकिन आपका जो दर्शन है वो बिल्कुल फर्क है। What is your answer? आपका उत्तर क्या है? What do you say to that? आप उसके लिए क्या Do कहेंगे? you accept you're wrong? क्या आप मानते हैं आप गलत हैं? When fire was coming from the reporter like this, जब इस तरह से उस रिपोर्टर से आग निकल रही थी, I marveled at the reply of the philosopher. मैं उस फिलोसोफर के उत्तर पर आश्चर्य करता हूँ। He calmly every time said, "Thank you, sir, for your question." हर बार उसने बड़े ही धीरज से कहा, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, And he respectfully spoke to him. और उसने बड़े आदर से उससे बात की। When he heard this gracious reply of this man, और जब उस रिपोर्ट ने इस व्यक्ति के इन कोमल उत्तरों को सुना, the reporter himself turned to his side and said, "What wisdom you speak, sir." तब ये रिपोर्टर खुद उसकी तरफ हो गया और कहा कि आप कितनी बुद्धि की बात है कहते हैं। And he was convinced that this man was something special. और वो इस बात को मान गया कि ये जो व्यक्ति है एक विशेष व्यक्ति है। Yes, my friends, this soft nature, humble nature from you in this situation हाँ मेरे मित्रों, ऐसी परिस्थिति में आपका जो बड़ा कोमल और दीन स्वभाव होता है, will bring the wisdom of God to act through वो you. परमेश्वर की दीनता को आप में, आपके व्यवहार में ले आएगा। Don't lose your time because of a harsh reply, एक कठोर उत्तर के कारण से आप अपने समय को न गंवाएं, but bring a soft answer. लेकिन आप एक कोमल उत्तर ले आए। Yes, when you reply graciously, humbling yourself in that situation, जब आप उस परिस्थिति में खुद को दीन करके उत्तर देते हैं, God's wisdom comes through you परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा आती है, to act in the right way, to speak in the right way. ताकि आप जो है बिल्कुल सही तरीके से उत्तर दें। And secondly, और दूसरी बात, Jesus says in the Bible, whatever they ask, you give it to them and much more. बाइबल में यीशु जो है कहते हैं कि वे तुमसे जो मांगे तुम उससे बढ़कर के उन्हें दो। Matthew 5:38 onwards, मत्ती 5:38 से आगे Jesus says, यीशु कहते हैं, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. तुमने सुना है कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, But I tell you, पर मैं तुमसे कहता do हूँ not resist an evil person. कि बुरे का सामना न करना। If anyone slaps you on the right cheek, यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे turn to them the other cheek also. तो उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। If anyone wants to sue you अगर कोई तुझ पर नालिश करे and take your shirt, और तेरा कुर्ता लेना चाहे hand over your coat also." तो उसे दोहर भी ले देना। Look at what Jesus is saying. तो देखिए यीशु क्या कह रहे हैं, Don't worry about what they ask. वो क्या मांगते उसकी चिंता मत करो, I will provide for you. मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। I will give you honor and love when they try to take it away from you. मैं तुम्हें आदर और प्रेम दूंगा जब वे तुमसे इन चीजों को छीनने की कोशिश करें। If they do evil against you, I will do good to you. अगर वो तुम्हारे लिए बुराई करें तो मैं तुम्हारे लिए भलाई करूंगा। So give them what they ask. इसलिए जो वो तुमसे मांगे उसे दे दो, Don't worry. चिंता मत करो, Trust in me मुझ पर भरोसा that रखो I will provide for you. कि मैं तुम्हारे लिए चीजों की पूर्ति करूंगा। That is the connection we need to have with God, हमें परमेश्वर से ऐसा ही संबंध चाहिए and not worry about these bullies. और ऐसे दुष्टों की हम चिंता न करें। And thirdly, my friends, और तीसरी बात मेरे प्रिय मित्रों, God says, strengthen your inner man. परमेश्वर कहता है अपने आंतरिक मनुष्य को बलवंत करो। It's said in Ephesians 3:16,
ये इफिसियों 3 और 16 में कहा गया है He would grant you, according to the riches of His glory, कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान to दे be strengthened with power through His Spirit in the कि inner तुम man. उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत God is होते going जाओ। to strengthen your inner man. परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करेगा। Today, you might say it is weak, Lord. आज आप कह सकते हैं प्रभु जी ये कमजोर है, It is hurt. वो पीड़ा में है And because of what they have done, I feel so inferior. और उनने जो किया है उसके कारण से मुझे बहुत ही ज्यादा हीन भावना है। Ask for God's Spirit. आप परमेश्वर की आत्मा को मांगे And His joy will fill you with the strength of God. और उसका आनंद आपको परमेश्वर की सामर्थ से भर देगा। His joy will increase within you. उसका आनंद आपके अंदर बढ़ता जाएगा You will feel loved by the Father. और आपको लगेगा पिता आपसे प्रेम करता And है He will walk with you. और वो आपके साथ चलेगा। You will not be afraid of any man, आप किसी भी मनुष्य से नहीं डरेंगे, but you will be confident that somebody Almighty cares. वरन आपको विश्वास होगा कि कोई सर्व सामर्थ्य आपकी चिंता करता है I need not worry about anybody और else. मुझे और किसी की चिंता नहीं करना। You will confidently stand up to them आप विश्वास के साथ उनके सामने खड़े होंगे and do good even to them. और उनके लिए भी आप भलाई ही करेंगे। You will be humble in that situation. उस स्थिति में आप दीन बने रहेंगे। You will give whatever they ask. जो भी वो मांगेंगे आप उन्हें देंगे। When your inner man is strengthened. जब आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत We होगा। need that strength, my friends, to face our bullies. मेरे मित्रों, हमारे सताने वालों का सामना करने के लिए हमें वही बल Without that, चाहिए। we'll make the wrong decisions or we'll be beaten down. उसके बगैर हम या तो गलत निर्णय लेंगे या फिर हम मार खा जाएंगे। So now shall we ask God for this inner तो strength. आइए हम परमेश्वर से इस आंतरिक बल को मांगे। Loving Lord, प्रेमी प्रभु जी, you know that we are weak. आप जानते हैं हम कमजोर हैं, We are hurt, Lord. हम पीड़ित हैं प्रभु। Look at your children's situation facing these bullies. ऐसे दुष्ट लोगों का सामना करते अपने बच्चों की स्थिति को आप देखें। It might be in their office place, वे उनके ऑफिस में हो सकता है, in their home. उनके घर में हो सकता है, It might be in their school, their college. ये उनके स्कूल या कॉलेज में हो सकता है। Lord, have mercy upon them. प्रभु जी आप उन पर दया करें। It might be in the society. वो उनके समाज में हो सकता है, Enemies coming and harassing them. शत्रु आकर के उन्हें परेशान कर रहे हैं। Please, Lord, आप दया करें प्रभु give your children your strength. और अपने बच्चों को आप अपना बल प्रदान करें। Step into this situation इस परिस्थिति में आप कदम रखें and be their God. और आप उनके परमेश्वर हो जाएं। Fill them with your strength right now. इसी समय उन्हें अपने बल से भर दें। As they open their heart to you for help, Lord, जब वे आपकी सहायता के लिए अपना हृदय खोलते हैं प्रभु जी, fill them with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें Let your Spirit bring inner strength within them. ताकि आपकी आत्मा उनके अंदर में आंतरिक बल ले आए। Let them be loved by you, Father. वे आपके द्वारा से प्रेम को पाए पिता, That somebody is always there with them to care for them. कि कोई जो है हमेशा उनकी चिंता करने के लिए उनके साथ है Let them not be afraid of the bullies. और वे सताने वालों से डरे नहीं। Give them the wisdom to act nicely and softly before anybody. किसी के भी सामने अच्छा और सौम्य व्यवहार करने के लिए आप उन्हें बुद्धि प्रदान करें। Give them gracious words and gracious acts. आप उन्हें कोमल और दया से भरे शब्द और क्रिया प्रदान करें Let it surprise their enemies and turn their hearts towards them. जो उनके शत्रुओं को भी चकित कर दे और उनके हृदय को भी उनकी ओर फेर दे। Oh Lord, act for your children. ओ प्रभु जी अपने बच्चों के लिए आप कार्य करें। Right now, thank you for transforming their hearts, Lord, इसी समय उनके हृदय को बदलने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, for healing their hearts. उनके हृदय को चंगा करने। You provide everything that their bullies have taken away from them. जो कुछ उनके सताने वालों ने उनसे ले लिया आप उनके लिए पूरा You करें। provide much more, Lord. आप कहीं उससे बढ़ करके उन्हें प्रदान करें। Compensate, Lord, आप उनकी क्षति and पूर्ति करें increase your children to great heights और अपने बच्चों को आप महान ऊंचाइयों तक बढ़ाएं, because they have trusted in you in the midst of bullying. क्योंकि सताए जाने के बीच में भी उन्होंने आप पर भरोसा किया Thank है। you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friends, somebody has come to your rescue and your side. मेरे मित्रों, कोई आपके बचाने के लिए आपकी ओर आया है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। What more do we need? हमें और क्या चाहिए? Our heart is full. हमारा हृदय तो भर गया, He will take care of us. वो हमारी चिंता करेगा। If you have any more questions like this, अगर आपके पास ऐसे ही कुछ और प्रश्न है, you can ask us in our U-Turn WhatsApp number. You can text us there, आप हमें यू टर्न के व्हाट्सएप नंबर पर उसे भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, or you can email us, या हमें ईमेल कर सकते हैं, or you can send your questions as a video in our WhatsApp number. या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न का एक वीडियो बनाकर पूछें। If you're watching this through YouTube, send it in the comments section.
अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में भेजें। And also, if you have gone through bullying and the Lord has rescued you, share your experience there. अगर आप भी सताव से गुजरे हैं और परमेश्वर ने आपको बचाया है तो अपना अनुभव वहाँ बांटें। Share your points there, it will help somebody. आपकी बातें बांटें, शायद वो किसी की सहायता करे। Alright friends, see you next time with something else. ठीक है तो मित्रों, अगले बार कुछ और चीज के साथ मिलेंगे। Till then, goodbye. तब तक अलविदा।